So today's session is interesting because of one major reason. It is very close to my heart. Uh, have been practicing technical analysis and stuff for many years. And 1 2 3 this has been so let's begin with a poll. Okay. Uh, I'll share with you something on the screen. तो बड़ा पुराना डेटा है पर आई थिंक थोड़ा सा नया करना पड़ेगा मुझे क्योंकि इसमें ठीक अभी के हिसाब से ही बता दो एज ऑफ नाउ 45 है तो 45 years व्हाट इज द रिटर्न ऑफ सेंसेक्स 18%। करेंगे तो पता चल जाएगा so yes it is between 15 to 18 exact percentage we all can actually know it so जो भी return है so let's assume it has come up 15%. Now the next question again. So most of us, around 80% of us think it is 15%. It is little more than 15, and then it is less than that. So now, if the same return, whatever has come in last 45 years, now the next question is if the same returns comes for another 45 years, which means 2049, 49 ही होगा ना? नहीं, 2059, 69. What will be the Sensex? उसके लिए भी I think I have a Can you see the poll? yes So assuming 15% return, okay, what do you think can be the Sensex? करोड़ों में जाएगा। ये technical analysis वाला game is very good if you are doing IAP with people who are mostly into equity markets, who are generally buying, selling stocks and things like that. तो उनके साथ ना volatility game से better होगा अगर हम लोग ये technical analysis वाला game खेलें तो. So I think this is a more suitable and it will be a more welcoming game for all of them. Okay. So 100% most of you are telling a 2.75 crore Sensex. So can you think what we all are telling? हाँ? In fact, अभी के हिसाब से it is actually more than 3 crores. यस 3 से 3 करोड़ का सेंसेक्स यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल रामदेव जी बोलते हैं 2 लाख का सेंसेक्स उसमें लोग कुछ ना कुछ सुना देते हैं उनको. So just imagine when we are talking of a 3 crore Sensex, is that possible? तो possible है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता पर numbers तो यही बोलते हैं and that's what the number is all about. Okay, so ठीक है ये अपनी जगह है. So let's see something what we all. तो आई थिंक राहुल ने तो ऑलरेडी अटेंड किया है ये सेशन. बाकी लोगों ने किया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम. आप लोगों का थोड़ा सा मैं अगर जानकारी क्योंकि क्या है ना और कुछ नहीं तो कुछ लोग रिकॉर्डिंग जरूर देख लेंगे. दैट इज द ओवरऑल आइडिया. और मैंने ये आज ही शेयर भी किया सबसे फाइनली कि व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. मेरा आइडिया है कि कॉन्फ्रेंस से पहले सो दैट वी कंप्लीट ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ आवर गेम्स एटलीस्ट. सो टेक्निकल एनालिसिस की क्या जानकारी है किसी को? चार्ट वगैरह कोई देखता है नहीं देखता है? बताइए. नितिन आप बताइए. राहुल जयराज जी रविंद्र.
मैं तो बिल्कुल चार्ट्स वगैरह नहीं देखता हूँ। ओके, तो राहुल इज नॉट इनटू लुकिंग एट चार्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? सेंसेक्स देख थोड़ा लिया, एक ही देख लिया बस। और कोई देखता है? नितिन? थोड़ा सा सर चार्ट इस लेवल पे देख लेते हैं कि ट्रेंड्स देख लेते हैं, वेटेड एवरेज देख लेते हैं। तो जो हाई वॉल्यूम ट्रेड्स होते हैं वो देख लेते हैं। कैंडल चार्ट बेसिकली ज़्यादा फेमिलियर है। तो है स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लस फंडामेंटल मिक्स करेंगे तो मतलब एक डबल एश्योरेंस वाली चीज़ हो जाती है एंड इट हेल्प्स। एंड व्हाट अबाउट शैलेंद्र, रविंद्र, अश्विनी? Do you see charts or something like that? Any idea? So if you tell me accordingly, we will take it forward. हाँ, अगर आपको बहुत कुछ मालूम है तो शायद चीजें ऐसी ही हो जाएगी। Yes, ये no, सर nothing. मैं भी चार्ट्स देखता हूँ सर। Okay, देखते हैं, ठीक है। और कोई? रविंद्र एंड शैलेंद्र? नहीं, चलो म्यूट मोड। तो क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस की देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट most of the asset management companies अपने बोलते हैं fundamentals and all, so they have a team which is more into keeping a track and identifying stocks, meeting the management and doing all whatever is required fundamentally, so they have to do, no doubt, but still they have a team which is also into technicals, and technical to a great extent helps the fundamental team or the trading team or the team which is going to buy and sell immediately or wait for some time. So that way it helps. Most of the time we consider technical analysis as something to see which is very short term, or maybe the trend immediately in next few days or a week, whatever you think. So in that regard, this is okay to see technicals as long as you have purchased something which is very fundamentally good and you just don't want to look at the prices every day. That's a separate thing altogether. तो ये एक कारण जरूर है। हम क्या करते हैं अपने, मैं कुछ स्लाइड्स हैं वो शेयर करता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्टली इसका गेम पार्ट देखेंगे, और गेम को भी आज हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखेंगे, so that no, because it's a very less number of people are there, I think we will be able to see that in a little different way. Okay, in the meantime, let me share with you, or in fact this is all about questions and answer, it is not about any presentation or anything. ऐसे भी I am strictly against the presentation, but what is a trend? Trend का मतलब क्या है? आप लोग को जवाब देना है। A series of events जो भी in a जो repeated. भी मार्केट के हिसाब से चल रहा है वो ट्रेंड है। जो चल रहा है वो ट्रेंड है। ओके, So इसीलिए the खूब कहा है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, और अगर ट्रेंड के साथ हो तो मतलब आप दोस्त के साथ हो, और ट्रेंड के साथ नहीं हो तो आप अपने दोस्तों के साथ नहीं हो, और दोस्तों के साथ नहीं होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता है कहीं ना कहीं, एंड यू विल बी लेफ्ट आउट एंड यू प्रोबेबली मे नॉट गेट सर्टेन थिंग्स व्हिच यू शुड बी गेटिंग। ओके, सो दैट्स व्हाट ट्रेंड इज ऑल अबाउट। और एक चीज, चार्ट्स के अंदर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना है, OHLC। एनीवन अवेयर अबाउट दिस? Open high, low, close. यस, ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। तो दिस इज लाइक ओपन, और ये उस दिन का हाई गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है, और ये लो गया, और ये फाइनली क्लोज गया। तो दिस इज एक स्टॉक का कैंडल है उस दिन का, open, high, low, close and all, wherever it falls. So this is there for each stock, each price movement, minute by minute भी है, day by day भी है, and everything whatever. उसी तरीके से नो कई बार स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो ऐसे ऐसे बनते रहते हैं, and then you continue to form. Now this is what you call is a, what type of trend is this?
ये कैसा Down ट्रेंड trend. हुआ? Downward slope trend. यस, डाउनवर्ड। और फिर कुछ टाइम के बाद में अगर वापस इस तरीके से बन जाता है, then what you can see इस तरीके से every day certain thing, certain formation is there, then it's a upward trend. So ट्रेंड रिवर्सल से क्या समझ में आता है? एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर अगर रिवर्स हो गया, समझ लीजिए यहाँ पे, दिस इज द सिचुएशन व्हेन इट गॉट रिवर्स्ड। तो ट्रेंड रिवर्सल इज द रिवर्सल ऑफ द प्राइस मूवमेंट आल्सो। तो जब भी रिवर्सल होगा, देयर विल बी अ, तो अगर ट्रेंड नीचे जा रहा है लेकिन अगर रिवर्स होके ऊपर चला गया, तो प्राइस में भी चेंजेस आएंगे, दैट्स व्हाट इट सेज। और यही चीज हम लोगों को समझनी है। तो हमारे ये जो आरवीसीसी पैरामीटर्स हैं, उसमें से दो पैरामीटर्स हैं जिनका आज डिस्कशन हम करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। until and unless these two parameters are minutely taken care, one will not be able to analyze and get into things as required. So ये जो एनालिसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम लोगों को ट्रेंड के हिसाब से समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रेंड का विश्लेषण बढ़ाते हुए। सो ओपन हाई लो क्लोज हमने देखा, समझा, इसी तरीके से नॉट वेरी टफ थिंग टू डू। और एक ये थ्योरी थोड़ा सा पार्ट है, बस ये 2-3 स्लाइड के बाद में हम लोग सिर्फ गेम, क्वेश्चंस और चार्ट्स को देखेंगे, and we will try and finish this whole session within 60 minutes. So already it is 17, so another 43 minutes we will take. तो एक ये डाउ थ्योरी है, और ये जो मिस्टर डाउ है, इनके नाम से ये डाउ जोन्स बना है, और ये सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस का इन्हें फादर कहा जाता है। तो मतलब टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो विदाउट डाउ थ्योरी के और विदाउट डाउ जोन्स के नहीं कर सकते हम लोग। तो इन्होंने ये कुछ 6 बातें कही थी, ओके। और उनका ये कहना था कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और 3 तरीके के मार्केट ट्रेंड्स हो सकते हैं, 1 ईयर, 3 वीक और 3 मंथ्स, और फाइनली मैंने 3 वीक से 3 मंथ्स, और एक है लेस देन 3 वीक्स। तो एक बहुत ही छोटा, और एक मीडियम, और एक लॉन्ग टर्म। सो टेक्निकलिटीज में 1 ईयर एंड अबव इज अ लॉन्ग टर्म, ओके। फंडामेंटल्स में लेस देन 1 ईयर इज short term, anything above 1 year to 5 year is medium term, and 5 years and above is actually a long term. But technicals में weekly चल रहा है, इसीलिए below 3 weeks is a short term, और 3 weeks to 3 months, and then above 1 year. So और इसमें 3 phases होते हैं, जैसे कि हमारे normal phases होते हैं accumulation, distribution and a panic phase. accumulation phases में जब एक व्यक्ति, जब मार्केट के लो कंटिन्यूसली accumulate करते हैं, तो वो हम ट्रेंड लाइंस में देख के समझ पाते हैं किस तरीके से, एक चार्ट में देख के कि लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और दूसरा फेज जब पैनिक में आ रहे हैं, किस तरीके से कंटिन्यूसली पीपल आर सेलिंग। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड, सो टुडे व्हाट वी विल सी, व्हाट इज दैट पैनिक सिचुएशन व्हिच हैपेंस इन द मार्केट। सो व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन आइडेंटिफाई अ पैनिक थिंग। तो हमें ये दिमाग नहीं लगाना है, वी नीड नॉट put our brain that whether this is market good, bad, क्या होगा नहीं होगा। If there is a panic, markets will fall and you should come out of it. It is like that. Until and unless you have thought कि नहीं मेरे को पूरा नीचे वाला चीज देखना है। So today what we will see some of the trends. Like COVID से पहले, I will show you the chart. What chart was showing on 22nd of February 2019 में हुआ था ना, 2019 में, the charts were indicating that the markets will fall, but हम सुनते नहीं है and it fall। और फिर उसके बाद में अप्रैल या मई में again it started showing that it will recover. What is that? What shows that the market is going to recover and going to fall? I will show you the figures of 2001, wherein on 29th August 2001 9/11 को क्या हुआ था? Anyone can tell me? 11th September 2001. Attack on America. Yes. And after that, what happened? Everything. Market crashed. So we can see that on 29th August, 10 days before the event, the charts were absolutely showing that the markets will fall. पर ये नहीं पता चलता है why it will fall, but it will fall. So we will see that. And
through those and through that mechanism we can actually understand and we can see and we can predict. सब प्राइम क्राइसिस से पहले हो या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो या अभी कोविड हो या और एक अभी का सिचुएशन, अभी के सिचुएशन में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, अपना जो आरबीसीसी पैरामीटर्स होते हैं और आरबीसीसी पैरामीटर्स जो अपने हर संडे को शेयर करते हैं, दैट इज व्हाट वी शेयर एंड दैट्स व्हाट द होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड. ओके, ओह माय गॉड, एक बंदे को जो गेम खिलाता है, इट इज सो मतलब डिफिकल्ट टू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग विदाउट नोइंग दैट वेदर पीपल आर लिसनिंग टू यू और नॉट. That's the problem of this mechanism. Anyways, that's life. So आगे बढ़ते हैं हम लोग. It's better to share the slide. ऐसे सिचुएशन में कभी कभी स्लाइड्स बड़ी हेल्पफुल हो जाती है. बीच बीच में थोड़ा आप FAQ या फिर वो पोल रख सकते हैं तो ध्यान में रहेगा. कोई है भी कि नहीं पता नहीं चलेगा. Anyway, एक और है फिबोनाची नंबर्स. ओके, जीवन के हर क्षेत्र में मैं कहूंगा anything and everything on this earth moves on these numbers. Okay, and technical analysis is not only about charts but it is about numbers also. एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था. कुछ खरगोश को रखा गया एक एक पिंजरे में और उन्होंने देखा कि उनकी जो प्रजाति है they were growing in that same proportion. और वो proportion क्या है? It is like a sequence. 1 plus 0 is 1, then 1 plus 1 is 2, then 1 plus 2 is 3, and then 2 plus 3 is 5, and so on and so forth. So it became like a sequence. अब अगर आप देखोगे इस तरीके की सीक्वेंस और कहाँ-कहाँ मिलती है, तो लियोनार्डो फिबोनाची ने देखा कि लिली के जो पेटल्स हैं वो भी इस सीक्वेंस में हैं, बटरकॉप के पेटल्स हैं या डेजी है या सनफ्लावर है या इवन जो समुद्र के अंदर शेल्स होते हैं, डायमंड्स के जो कट्स होते हैं, एवरीथिंग इज इन अ सीक्वेंस एंड दैट इज कॉल्ड अ फिबोनाची सीक्वेंस. और एक ये गोल्डन रूल है वास्तु में एंड सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो. नो पीपल यूज दिस स्ट्रेटेजी so that no they can actually create a sync with the nature. And now the equity market and the wealth mechanism, everything moves in this sequence. So this is a very, very deep study and there are people who have written hundreds of books, thousand pages ka on this particular subject and very, very interesting. आप इसको Google में search करिए, देखिए. It is an endless world of these things. Even people making doing architecture, okay, no, architect को भी अपने इस फॉर्मूला के हिसाब से लोग चीजें बनाते हैं, करते हैं. And that really makes a lot of sense to do things in this format. एक चीज और हम लोग जो देखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में आज है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कितना बेटर होता है, क्या खराब होता है, दैट आल्सो वी विल सी. और एक दूसरी चीज हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ के अलावा देखेंगे वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो बस इन्हीं चीजों को लेके आज का ये सेशन है. ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हम लोग एक चार्ट देखते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज का गेम भी खेलेंगे. उस चार्ट में मैं आपको एक लाइव चार्ट ले जाता हूं और ये चार्ट है. जस्ट यू विल गो टू investing.com और सबसे रिक्वेस्ट है whoever is present today please follow this charts which I share in the newsletter every Sunday. but इसको कैसे करना है, it is very important. तो सबसे पहले जैसे NSE कर लिया या कोई भी स्टॉक को करना है, you can identify a stock and put it there. Once you do it a day and then the next thing comes is you have to write, let's say, exponential moving average. तो हमने ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे किया, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया whatever. और इसके अंदर में फिर आप जाते हैं अपने हिसाब से करते हैं. यहाँ पे 9 डेज है बट आई प्रेफर 13 डेज. और एक दूसरा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं वो है 26 डेज. और थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं सो दैट अलग अलग चीजों को अलग अलग लाइन में आप देख पाएंगे. ओके, so now we have 2 lines if you all can see. A blue line is a 13-day moving average, red line is a 26-day moving average. ये निफ्टी है, आज का डेटा है, आज यहाँ पे बंद हुआ है बाजार. ठीक है,
अब इसमें क्या है इंटरेस्टिंग चीज, चार्ट है, सभी लोग देख रहे हैं और हमें क्या देखना है। तो कहने का मतलब है 13 डे का मतलब क्या होता है, आज का जो क्लोजिंग है और पिछले 13 डेज का जो क्लोजिंग है, उन सब क्लोजिंग का जो एवरेज है वो आज का डॉट है। मतलब ये वाला जो डॉट है वो आज 13 दिन की क्लोजिंग का है, और ये जो कल का डे का जो डॉट था वो उससे पहले वाले 13 दिन का, और उससे पहले वाले 13 दिन, और उससे पहले वाले 13 दिन, और उससे पहले वाले 13 दिन, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो उस तरीके से ये ब्लू लाइन बनती है। तो कहने का मतलब है एज लॉन्ग एज द मार्केट इज अबव दिस ब्लू लाइन वी आर इन अ पॉजिटिव टेरिटरी। वंस द मार्केट स्टार्ट मूविंग डाउन बिलो दिस पॉइंट, जैसा कि यहाँ पे था या यहाँ पे था या जब भी था, देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल एंड देयर इज अ चेंज। अब लॉन्गर टर्म का अगर देखें, 26 डेज इज अ लिटिल लॉन्गर टर्म कंपेयर टू 13 डेज, एंड देन वी हैव 50 डेज एंड 200 मूविंग एवरेजेस आल्सो, वो और भी लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, अब अभी जो मैं चीजें बताऊंगा आपको 2 बार बताऊंगा सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। अभी यहाँ पे ऐसा, ओके देखिए ये वाला, परफेक्ट। अभी ये देखिए ये कौन सा दिन है, ये है 16 नवंबर 2023। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये देखिए नीचे था करीबन, ब्लू लाइन से नीचे जा रहा है, नीचे है सेंसेक्स, मतलब एक नेगेटिव ट्रेंड आया हुआ है। लेकिन ये ब्लू लाइन के ऊपर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में चला जाता है क्लोजिंग, और कंटिन्यूअसली 3 दिन उसके ऊपर रहता है, देखिए यहाँ के बाद 2-3 दिन रहा, तो यू कैन कंफर्म दैट तेजी आ गई है। ओके, और इसीलिए देखो आप यहाँ से लेके ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही गया, फिर यहाँ पे देखिए कुछ 3 दिन डाउन हुआ लेकिन फिर रिवर्स हो गया। तो अगेन एंड अगेन यू विल सी इन बिटवीन कुछ कुछ हो रहा है ऐसा, एंड सो ऑन। बीच में ऐसा नहीं हुआ एक दिन, इसीलिए मैं कहता हूँ 3 कंटिन्यूअस डेज मिनिमम। इफ इट हैज गॉन अप फॉर 3 consecutive days, then only a positive trend starts. अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या है ना, कुछ दिन पहले विच वाज अराउंड अगस्त, 2 अगस्त के आसपास एक बार डाउन ट्रेंड आया, तो कंटिन्यूअसली 2-3 दिन डाउन भी था। तो यस, एक सेलिंग पॉइंट बन गया था, बट उसके बाद में अभी अगर आप देखें फिर तुरंत चेंज हो गया है, तो विच इज अगेन, सो इट इज नाउ इन अ पॉजिटिव जोन। तो अभी भले ही कुछ लोग बोल रहे हैं नेगेटिव है, ये है वो है, लेकिन जब तक ये ट्रेंड नीचे नहीं आ जाता है, इसके नीचे नहीं जाता है, हम लोग कोई सेल का सिग्नल या सेल का कॉल नहीं लेंगे। दैट्स व्हाट द टेक्निकल थिंग टॉक्स अबाउट। ओके, अब मैं आपको कुछ और पुराने डेटाज में जाते हैं और हम लोग देखते हैं उसको कि कहाँ रिवर्सल हुआ था, कहाँ चेंजेस हुए थे। ये देखिए कंटिन्यूअसली अभी तो हम लोग तेजी में ही हैं। हाँ, इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पे ये वाला अच्छा सिचुएशन है। ओके, दिस इज अराउंड December 22nd December 2022. If you see on this particular date, 13 डे मूविंग एवरेज के बाद 3 दिन कंटिन्यूअसली डाउन, और अगर आपने यहाँ पे भी अगर सेल कर दिया, ठीक है, तो 17,800 कुछ था, तो एटलीस्ट आपने एक अच्छा ट्रेंड करके यहाँ तक देखिए आपने मोरलेस 17,000, तो आपने करीबन 700 पॉइंट का, 1,800 पॉइंट करीबन आपने गेन देख लिया। So this is what you have actually seen in whatever the form of. अब फिर यहाँ के बाद में जैसे ही चेंज हुआ 1 2 3, जैसे ही यहाँ पे आ गया 17,500 में, फिर आपने बाई कर लिया एंड देन यू हैव सीन द थिंग। तो यहाँ पे ऑल्दो हमें छोटा सा एक पॉइंट मिला ऐसा नेगेटिव, पर हमने इस ट्रेंड को अगर देख लिया और इसको समझ गए तो दैट वे इट वर्क्स। तो सेम वे इफ यू सी, अपने लोग कोविड वाला सिचुएशन में चलते हैं एक बार, एज आई टोल्ड यू। अच्छा, कोविड तो आ ही गया, इधर ही तो है। चलिए 2022, कोविड तो था 2019 ना। सर 2020 में आया था फर्स्ट कोविड। March 2020. हाँ, 2019 में तो वहां आ गया था चाइना में। हाँ,
मार्च 2020 में था सब। ये राइट आ गया। तो ये देखिए, ये जो रेड ब्लू लाइन है यहाँ पे, ये 13 डे मूविंग एवरेज है और 26 डे मूविंग एवरेज रेड लाइन है। तो ये जो सिग्नल है 20 फरवरी का, ठीक है, तो 20 फरवरी को सबसे पहली बार नीचे गिरा बिलो दैट, ठीक है, हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे उस दिन। फिर उसके बाद सैटरडे संडे था या व्हाटएवर, 24 फरवरी को भी डाउन हुआ, लेकिन हम लोग 25 फरवरी को वी कैन इजीली टेक अ डिसीजन दैट वी शुड कम आउट ऑफ द मार्केट। क्यों, रीजन क्यों गिर रहा है क्यों नहीं गिर रहा है हमें नहीं पता। 11,844,000 निफ्टी, ठीक है, और वहां से फिर हम लोग को सबको मालूम है कहां तक चले गए हम लोग, 7,700। तो ये जो पीरियड है, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मेनी डेज, लेस देन अ मंथ। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। और उसके बाद में ये ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा ऊपर आया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे भी अगर आप लेते हो विच इज अप्रैल मई 27 मई के बाद 28 में 29 में, तो 29 मई को 9,500, देखिए एकदम नीचे और एकदम ऊपर नहीं पकड़ पाएंगे आप लोग। इफ यू थिंक दैट यू कैन कैच द बॉटम एंड कैच द हेड, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट गोइंग टू। उसके लिए और 2-3 चीजें हैं टेक्निकल एनालिसिस में जिसकी डिटेल्स में वी आर नॉट गोइंग टुडे, but again this is going to really help you to understand that from here at this point, if you have purchased at 9,500, I think then the rest is the story. So this is one very very good way to understand and see how things move. दूसरा पार्ट है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या बताता है हमें, और इसके अंदर में भी दो है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो यूजुअली हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर देखना है विच इज 65, क्योंकि आपका ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देखिए जब भी एक टॉप में चला जाता है, दो लेवल है, एक 30 और एक 70। 30 नीचे चला गया मतलब एवरीथिंग इज ओवरसोल्ड, और 70 के ऊपर है मतलब ओवरबॉट। तो आप 70 के जोन में हो आप बेचो, और 30 और उसके नीचे में हो तो आप खरीदो। ओके, ये ट्रेंड है, इनके बीच में समवेयर वी कंटिन्यू टू मूव। तो अभी देखिए यहाँ पे, सी दिस इज द डेट ऑफ 18 अक्टूबर 2021। मार्केट यहाँ पे ऊपर था और यहाँ पे भी ये ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया। अगर किसी ने यहाँ पे बेचा है तो सी दैट उन लोगों को आने वाले कुछ समय में एक लो मिल गया फिर नीचे मोरलेस। तो ये सेकंड चीज है जो देखने की है, 70 के पास हो कम आउट ऑफ मार्केट, 30 के पास हो गेट इनटू द मार्केट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये मोरलेस आप देख रहे हो ऊपर नीचे। एक्सट्रीम कुछ सिचुएशन हो तभी देखने का है, जैसे ये 62 के आसपास है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 70 तक तो नहीं गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो समवेयर, तो यू विल हैव टू सी ऑल अदर फैक्टर्स। एज ऑफ नाउ अभी हम लोग करीबन 59 के आसपास चल रहे हैं, ऐसा नहीं कहूंगा वी आर एट द पीक। अपने पुराने वाले में देखते हैं कहाँ थे, 2000, ये देखिए 2021 अक्टूबर मेरा, दिस इज मार्च 2020। मतलब अब यहाँ पे ये चीज से पहले आ गया, हम लोगों ने डिक्लेयर किया था ना वो कोविड के बाद में, यहाँ पे इस पॉइंट में तो हम लोग लेते नहीं, हम लोग तो टेक्निकली यहाँ पे आके लिए ना कुछ दिन बाद, लेकिन यहाँ पे एकदम 30 चला गया है बिलो दैट। लेकिन अगर आप RSI देख रहे हो और 30 के नीचे चला गया है एट एनी सिचुएशन, दिस इज वेरी वेरी चीप। कुछ भी मार्केट हो कितना भी खराब हो, आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर 30 के आसपास आ गया है, आई थिंक दैट इज अ मस्ट बाय फॉर एनीवन। सो आप ये सब सिचुएशंस को देखकर आप आराम से बाई कॉल्स और सेल कॉल ले, और ऐसा नहीं रोज नहीं आता है ये। दिस इज सी, मैंने आपने देखा ना कहाँ आया, एक दिन है इसके बाद है ही नहीं, 30 कहाँ आया ये, और या फिर 70 भी कब जाता है। तो अगर वैसी सिचुएशन मिल गई तो टेक अ डिसीजन एंड टेक अ कॉल। ओके, सो ये दो ही पैरामीटर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो मैं बताना चाहता था। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मैं आपको एक
क्वेश्चन समझ लो या गेम के फॉर्मेट में मैं आपको पूछता हूँ ये सारी चीजें। चलिए ये गेम नहीं खिला रहा हूं मैं आपको, सिर्फ स्लाइड के फॉर्मेट में ही है क्योंकि हम लोग थोड़े से लोग हैं। आप लोग सब लोग इसका जवाब दीजिएगा। अभी आपको कुछ डेटा दिख रहा है, ठीक है, और ये डेटा क्या है? एक पर्टिकुलर डेट को निफ्टी ये था, RSI 44 था, 13 डे मूविंग एवरेज ये था, 26 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद वाले दिन ये रहा और उसके बाद वाले दिन ये रहा। अब आप बताओ, और उसके बाद वाले दिन ये रहा। आपको 4 दिन का डेटा मैंने दे दिया है। 6 महीने बाद आपको क्या लगता है यहां से मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा? अभी आप इक्विटी में डालोगे या डेट में डालोगे? लुक एट ऑल दिस। RSI का ट्रेंड इज सर अभी तो लाइक, इक्विटी में डालने वाला लग रहा है। क्यों लग रहा है ये हेलो बताइए। सर, अभी क्या नाम, RSI तो हमारा 65 से काफी बिलो है ना। हम्म, RSI 65 से काफी बिलो है सर। ओके। और कुछ? तो आपके हिसाब से इक्विटी में डालना चाहिए, ठीक है। हाँ। और कोई कुछ बताएंगे? 13 डे मूविंग एवरेज और निफ्टी को मूविंग देख के एवरेज, बताइए। हाँ 13 डे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो ऊपर है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के, तो वो भी पॉजिटिव साइन है। ओके, तो आप लोगों के हिसाब से हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे 6 महीने के लिए। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं करने वाले ऐसे कोई लोग हैं? तो दो ही पैरामीटर हमें देखने हैं, एक 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या, दूसरा RSI कहाँ है, मोरलेस 70 के आसपास तो नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। और अगर 30 है तो लेना ही चाहिए, 30 तो है नहीं। और अगर ये है, आइए चलिए हम लोग देखते हैं क्या हुआ। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आपने जो सिचुएशन बताई थी वो ये है, यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है। और उसके बाद में क्या हुआ, जो बोलिए, ये डेट्स थे 28/2/2021 से लेके 28 जनवरी, करीबन ये 5-6 महीने का समय था। और क्योंकि आपने ये जो ट्रेंड देखा 28 ये वाला 7 का, यहाँ पे ये सिचुएशन में देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये जो सिचुएशन आपने यहाँ पे टान लिया, और उसके 6 महीने बाद as you can see this is what has happened. So yes, you all are right कि 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। RSI भी not so cheap but not expensive also, so you should invest into equity। और 15,800 से लेकर 17,000 का दौर, 8.86% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन 6। So very good, congratulations। Let's move to the next question। Another situation, Nifty is 11,813, फिर 908 और फिर 12,021। RSI 54, 58, 63 हो गया है। ओके, 13 डे मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं। इस सिचुएशन से अब आपको क्या लगता है, 6 महीने के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सर पार्सली कर सकते हैं हमें लगता है। पार्शियली कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम करेंगे, या करेंगे या नहीं करेंगे। कोई पार्शियली नहीं है यहाँ पे। टेक्निकल में कुछ पार्शियल नहीं होता, या है या नहीं है, या करेंगे या नहीं करेंगे, या इक्विटी या तो नॉन नहीं इक्विटी। करना चाहिए सर। कौन बोल रहा है नहीं करना चाहिए? हम सर रावेंद्र। अच्छा, और बाकी करेंगे सर। कौन बोल रहा है करेंगे? नवीन। नवीन बोल रहा है करेंगे, ठीक है। देखिए 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या निफ्टी? पहले बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है। तो बस क्यों सोचना है फिर। ठीक है, नवीन इज आई थिंक 23% का रिटर्न है यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये जो है ना बायसनेस है कि पिछले वाले कंपैरिजन में अभी ज्यादा है कम है, कुछ नहीं है। कोई फिगर ज्यादा नहीं होता है, टेक्निकल्स में कोई कम नहीं होता है। सीधे सीधे हमारा प्रिंसिपल है कि 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो भाई इन्वेस्ट करेंगे। बाजार जाए, जो सोचता है एनालिस्ट टेक्निकल, कोई मतलब फंडामेंटल वाले, टीवी वाले जो बोलते हैं बोलने दीजिए, वी आर नॉट बॉदर्ड।
यहाँ पे आप देखिए इस लेवल से 3 दिन ऊपर गया और तेजी खत्म। भले ही 63 है, 70 तो नहीं है। सो गुड, करेक्ट अगेन नवीन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं मजा आ रहा है तब तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। अरे मजा आ रहा है, आगे बढ़ो। नहीं सर मजा आ रहा है। इट्स गुड। नहीं ये चीजें ना बहुत ही सिंपल है, और अगर हम लोग समझ जाए ना हम लोग को क्या देखना है टेक्निकल में, वो जरूरी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। गेम्स में यही आता है, जब हम लोग गेम्स खेलते हैं ना तो ये है, लेकिन जब थोड़े से लोग रहते हैं अपने टीम में बनाएंगे नहीं, मजा नहीं आएगा, तो इसमें ऐसे ही करवा दिया मैंने। तो अभी एक आ गया आपके पास RSI 4238 RSI इज वेरी वेरी लो। 13 डे मूविंग एवरेज 11,800, फिर 11,805, फिर 11,769। तो पहले वाले में जो RSI था 63 तक था, यहाँ पे तो 38 है। लेकिन 13 डे मूविंग एवरेज को आप देखिए और फिर मुझे बताइए क्या करेंगे 2 महीने बाद, ओनली 2 मंथ्स। नहीं करेंगे सर सर इन्वेस्ट। ये वो नहीं बताइए। इसमें देखिए सर, दो रीजन है बेसिकली। एक तो आपका निफ्टी जो है अपना 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सेकेंड चीज, 13 डे मूविंग एवरेज भी 26 डे मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब वो नेगेटिव क्रॉसओवर होके रखा है। तो उस केस में वो सेल कॉल है, एक तरह से बाई कॉल नहीं है। नॉट ओनली 13 डे, ये 26 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। कैन यू सी दैट? तो इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये नेगेटिव है। आगे क्या होता है अपने लोग को पता नहीं, आइए देखते हैं। तो देखिए यहां से ये पूरा नेगेटिव ट्रेंड चला गया, और आपके जो रिटर्न्स हैं 2 महीने में करीबन -7% रिटर्न। माय डियर फ्रेंड्स, RSI भले ही आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन सिंपल स्टैंडर्ड रूल्स, आपका 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे 3 दिन चला गया, जब तक वापस ऊपर नहीं जाएगा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एकदम बेसिक रूल है ये। और टेक्निकल्स, और हमारे इसीलिए हम लोगों ने अपने 9 पैरामीटर्स के अंदर में 2 टेक्निकल्स के पैरामीटर डाल रखे हैं कि वो 9 के 9 अगर पॉजिटिव हो गए तब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। और वो 9 के 9 नेगेटिव हो गए तो हमें कोई 30, 50, 60 का जरूरत नहीं है, हम पूरे के पूरे इक्विटी से बाहर निकल जाएंगे। हाँ टेक्निकली और ये पैरामीटर्स को फॉलो करना है, तो अदरवाइज इट्स फाइन। ऐसा नहीं है किसी ने करना ही नहीं है कि हमें 10 साल 20 साल 30 साल निकालना ही नहीं है, तब इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, उनके लिए एब्सोल्युटली फाइन। पर आप वो नीचे अगर जा रहा है कोई भी कारण से, उसे देखकर आप विचलित नहीं होते हैं, देन इट इज एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट द होल आइडिया ऑफ द। चलिए लास्ट और एक, निफ्टी इज 17,999, 52 है RSI। अगले दिन ये हो जाता है 17,800 कुछ, और उसके अगले दिन हो जाता है 17,764। क्या करेंगे आप? 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। सर हमें लगता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला तो है ही नहीं इसमें। क्या क्या? सर इस समय तो इन्वेस्टमेंट करने वाला है ही नहीं, क्योंकि RSI भी मतलब क्या नाम काफी ऊपर है, और मूविंग एवरेज भी हमारे काफी ऊपर है। मूविंग एवरेज ऊपर है? यस मूविंग सर। एवरेज ऊपर कहाँ है? सर 30 डेज 30 डेज मूविंग एवरेज आप है ना सर, निफ्टी से। हाँ निफ्टी से ऊपर है, मतलब निफ्टी आपका 13 डे। देखिए निफ्टी कहाँ है, नीचे है या ऊपर है? अगर ये आपका मूविंग एवरेज है तो इसके ऊपर है या नीचे है, इज द क्वेश्चन। निफ्टी नीचे है नीचे सर। है तो आप क्या करोगे, ऊपर है तो क्या करोगे? फिर से बताइए, नीचे है तो क्या करोगे? पर निफ्टी नीचे है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्ट तो नहीं सेल करेंगे, करेंगे। और निफ्टी 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो क्या करोगे? फिर करेंगे इन्वेस्ट। तो करेंगे। बाई करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे आप? नहीं करेंगे, इक्विटी में बाई नहीं क्या नहीं करेंगे। करेंगे? बाई नहीं इक्विटी। करेंगे। बाई इक्विटी में बाई नहीं करेंगे। हाँ तो सेल करेंगे जो भी है हमारे पास। ठीक है, एवरीबडी एग्रीज? यस यस सर।
चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे था और वहां से लेके यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। यस इट वेंट नेगेटिव और एक महीने का रिटर्न करीबन -7-8% विच इज बिकॉज नीचे था ट्रेंड और 3 दिन कंटिन्यूअसली नीचे जाने के बाद आपने डिसीजन लिया और उसके बाद में आपका जो होना है हो गया। तो दिस वे ये जो है सर सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या एक इंडिविजुअल शेयर पे भी अप्लाई कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली ये पूरा का पूरा जो स्टडी है ये स्टॉक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, हर स्टॉक के लिए और ओवरऑल मार्केट के लिए आप इसे यूज कर सकते ओके हैं। इवन थैंक यू। गोल्ड के लिए, करेंसीज के लिए, कोई भी मेटल के लिए, एवरीथिंग। जिस चीज का भी चार्ट बनता है उसमें अप्लाई हो जाएगा। हाँ सबके चार्ट्स हैं इसके अंदर में, अगर आप देखेंगे तो आप मतलब ये वाला है तो इसमें आपको एनएससी की जगह मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड। आपका गोल्ड है, गोल्ड फ्यूचर 2500 कुछ और अभी बीच थोड़ा फॉल भी किया था एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेंड नीचे आ गया फिर अभी ऊपर ही है, पॉजिटिव नहीं है अभी। यहाँ से गोल्ड का पॉजिटिव। अगर सिल्वर देखना है सिल्वर ऑल्सो इज पॉजिटिव, क्रॉसओवर में ऊपर टांग के रखा है। और कोई स्टॉक देखना है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड ऑल्सो ये देखिए यहाँ पे 7 मार्च 2024 के बाद में पूरा ब्रेकआउट कर गया है और तब से लेके अभी तक इट हैज जस्ट गॉन अप। तो 427 था और अभी 503 है। तो दिस इज व्हाट इज। और टेक्निकल से बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई स्टॉक्स जो कि अभी गिरने वाले हैं या जो कि अभी यहाँ से इस पॉइंट से बढ़ने वाले हैं। तो दैट मेक्स थिंग्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट। अपना ये जो गेम है वो भी एक राउंड थोड़ा सा खेल लेते हैं अपने लोग। बट ये जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया वो वही चीज है एंड यू विल बी एबल टू सी दैट। और आई थिंक सर ये टाइम पीरियड को कहीं डिफाइन नहीं कर रहा है, ये वाला जो पैरामीटर है। हाँ इसमें आपका एब्सोल्युटली ये आपने सही कहा, इसमें टाइम नहीं है कि भाई ये जब है जिस दिन भी चेंज हो गया रिवर्स आप चेंज कर सिंपल। तो आपको ये सतर्कता ट्रैक रखना हमेशा है। ही बनाए हाँ। एंड यू जस्ट कैन नॉट रिलाई कि ये 3 महीना के लिए है या 6 महीना के लिए है या ऐसे है या वैसे है व्हाटएवर। तो प्रशांत सुरेश जी से पूछा ना वो एक कॉमर्शियल गाड़ी का दिया था वो उसका नहीं दिया है। मैं रहते देख लूंगा पर दिया नहीं अभी। नाम को एक बार कॉल करना है और अभी ये जैसे टेक्निकल वाला जो गेम और वॉलेटिलिटी कोचेस का है आपके बैकएंड में रहेगा। तो आप जैसे ही इसे क्लिक करोगे अब इसके बाद में ट्रेंड आया। देखिए ये पहले 2 दिन है, ये बाद के 2 दिन 50। ये 7 डे मूविंग एवरेज है, 13 डे है, 50 है, 200 है और आरएसआई है, मैंने सब डाल रखा है। ठीक है। अब इस सिचुएशन में समझ लीजिए किसी ने बोला नहीं भैया आपको 100% में रखना है, किसने बोला आपको 100%। ठीक है। 1 करोड़ रुपए है आपके पास, क्या होगा 1 साल बाद? आइए देखते हैं। Equity rate was 17% return
और ये एग्जैक्टली वहां पे मैंने बहुत स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया जहां पे वो चेंज ओवर हो रहा है, तो उससे समझ में आ जाता है। यहाँ पे निफ्टी देखिए 14,700 करीबन सबसे ऊपर ही है, आगे दिया आपने अच्छा ऊपर का ही गाड़ी है more or less। भले ही ये 70 के आसपास है, देखिए बहुत एक्सपेंसिव जोन है, बट स्टिल इट इज देयर। 1520 है, ये भी आप कॉपी होगा मोर और लेस। हाँ व्हाट्सअप किए व्हाट्सएप पे 19%। ये इंटरेस्टिंग होगा। तो ये बताइए क्या लगता है आपको, निफ्टी 1500 है और दोबारा करेंगे। ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं है, 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है यहाँ पे, देखिए आप। यस, ये 6 है, एक साथ में था, फिर इसके नीचे चला गया, फिर इसके नीचे चला गया। क्या लगता है आपको, बताइए। नेगेटिव लग रहा है ना? तो अगर ये शॉर्ट टर्म का देखेंगे, शायद हमारे को ये 1 साल का टर्म है ना इस गेम में, तो पॉजिटिव ही रहा 1 ईयर के एंड में। बट अगर 2 ईयर्स 2 मंथ 3 मंथ्स का अगर देखें, तो ये पीरियड कौन सा है, 2003 अक्टूबर का है पीरियड। तो उस समय अगर हम लोग जाएंगे डिटेल में देखेंगे, तो प्रोबेबली वी विल बी एबल टू सी अगर पॉजिटिव ही है। आप लोग देख सकते हैं ऑफ डेट्स एंड चार्ट में देख रहा था, कोई नेगेटिव आ जाए तो। देखो ना, इसमें 13 डे मूविंग एवरेज में थोड़ा नीचे तो है, पर नॉट सो डाउन। चलिए इन्वेस्ट करके देखते हैं। फाइनली व्हाटएवर द ट्रेंड्स आर, उसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। That's what is all about. Any questions on this so far, whatever we have done? Otherwise, we are done 7 minutes before the time. Simple, isn't it simple to see? It takes only 1 or 2 minutes. बाकी के सारे parameters के संग, if we just look at all this also, no, it really adds a lot of things. आपको just trend देखना है। इसके अलावा MACD और क्रॉसओवर्स भी अगर आप लोग देखें तो बहुत अच्छी चीज है। बट आई थिंक ये जो हमने आज बताया है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक होता है डेली मूविंग एवरेज। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी अपने लोग देख रहे थे, वो वेटेज जो है एंड की तरफ बढ़ जाता है और शुरू की तरफ वेटेज कम होता है। और डेली मूविंग एवरेज में क्या होता है ना, 13 के 13 दिन का जो एवरेज है वो ले लिया जाता है। दैट इज सेम, दैट्स द ओनली डिफरेंस। गॉट इट? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर जैसे आपने मूविंग एवरेज में 13 डेज और 26 डेज लिया है, तो वो 13 और 26 के ही क्या रेलिवेंस है? मतलब मैं 20 डेज डीएमए और 200 डेज डीएमए लगा के चलता हूँ, कोई भी चार्ट देखना होता है। 200 डेज तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही बड़ा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो 200 नहीं, डेज मैं तो बहुत ही देख रहा था long term। 20 डेज ही होता है। हाँ 20 डेज मेन तो 20 डेज देखते हैं। हाँ, मैं somehow 13 days मेरे को लगता है is a very good way to see the trend, and that's the reason I- फोर्टनाइट का देखते हैं सर, 13 डेज में आपके मोरलेस 2 वीक का। हाँ, 3 वीक हो गया एक्चुअली। तो 5 दिन है ना, 5 10 2.5 वीक करीबन हो जाता है 13 डेज। और 20 डेज का कहने का मतलब है पूरा महीना ही हो गया। नहीं 26 डेज देखते हैं तो 1 महीने का होता है, और 13 हाँ। डेज देखते हैं तो मतलब 15 दिन का, 15 डेज का। नहीं, बट एक महीने में वर्किंग डेज तो 26 नहीं होते ना, वो सैटरडे संडे सारे ऑफ होते हैं, Yes, तो वो yes, 22 डेज के आसपास में ही रहता है इफेक्टिवली। absolutely.
तो ऐसा ये 13 डेज और 26 डेज किस आधार पर लिए हुए हैं इससे सर? भी समझ में आए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि देर इज कोई एक स्टैंडर्ड रूल है आपको देखना है, पर ओवर एंड अबव व्हाट यू कैन, अब अगर आपको बहुत लंबा देखना है, अब जैसे ये 26 की जगह, अब समझ लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 200 डेज, ठीक है, और इसको 13 की जगह करते हैं अपने लोग 50 डेज, पूरा लॉन्ग टर्म हो गया ये। कहने का मतलब ये इतना नीचे आ गया, अब इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग क्या हो जाएगा देख लेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो फिर भी ठीक है, पर एकदम शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिए 200 डेज के ऊपर ही हैं आप, मतलब पूरा ही तेजी है। मतलब ये देखिए अप्रैल 2023 के बाद से लेके तेजी ही तेजी है। मतलब ये तो मैंने म्यूचुअल फंड वालों को अगर देखना है तो 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज देखिए, आराम से बढ़िया है। सर वो टीवी पे क्या है ना, जब शेयर बहुत ज्यादा गिर जाता है ना तो फिर वो 50 200 से 200 पे चले जाते हैं, या तो उसके नीचे भी गिर गया है, ये तो बहुत खराब हो गया ट्रेंड, तो नहीं वो ये स्टोरी आने देखो लग ना, जाती ये है। एक बार गया बाजार, ये आपका जून में, जून 2024 में निफ्टी 200 डेज के नीचे नहीं गया देखिए। तो जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा है तब तक तो देखिए ना, यहाँ पे भी इतना टच करके निकल गया, फिर यहाँ पे ये आ गया, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क इफ यू सी। अब देखिए 200 डेज के नीचे में कब गया था, ये देखिए यहाँ पे 5 मई 2022, लेकिन सबसे पहली बार कब गया 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, थोड़े दिन के लिए गया था यहाँ पे, तो ये जो था नेगेटिव जोन था ये पीरियड, सो दिस इज द टाइम नॉट टू बी इन द मार्केट। उसके बाद में फिर प्लस माइनस होकर जो भी हो जाए, और फिर 200 डेज को तोड़ के चला गया ऊपर, तो फिर आ जाओ बाजार में। देखिए 200 डेज है पर बहुत है, तो जैसे अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो 13 डेज, अदरवाइज 200 डेज तो, 50 डेज तो बहुत लॉन्ग टर्म भी है। So with this, we are done for the day, and thank you so much, patient.